Good afternoon, all of you. Next paragraph is: a few moments later, we all lifted our eyes in a way as a spectacular area of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in the perfect formation over the Union Building. ठीक है, कुछ क्षणों के बाद हमारी आंखें विस्मय से उठी जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका जेट हेलीकॉप्टर एक व्यवस्थित तरीके से दिखाई दी. Okay, it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moment before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bed-checked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a caravan of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green and blue and gold of the new South African flag. ओके, यह सेना का न होकर केवल एक नियमित प्रदर्शन था, बल्कि प्रदर्शन था सेना के प्रजातंत्र के प्रति, नई सरकार के प्रति वफादारी का, जो स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी. कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस ने उच्च जनरलों ने, जिसकी छाती पर बीते दिनों के रिबन और पदक थे, मुझे सलामी दी और वफादारी की शपथ ली. मैं उस तथ्य से भी अनजान नहीं था कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे सलामी न देकर गिरफ्तार किया था. अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले, सुनहरे रंगों के धुएं को भी आकार में छोड़ा. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the version of white singing. ओके, और वह दिन मेरे लिए प्रतीक था जब हमारे दो राष्ट्रगान बजाने का और एक स्वप्न की श्वेत नया राष्ट्रगान गाए और श्वेत उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान. यद्यपि उस दिन उसमें कोई भी उस गीत के बोल नहीं जानता था जिसे वह कभी घृणा करते थे, परंतु वे शीघ्र ही यह सीख जाएंगे. Nkosi Sikelei Africa and Black Singing Die Steam, the olden anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, and they would soon know the words by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ओके, उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की अनुभूति से अनुभूत हो उठा. 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुख्यात आंग्ल-बोर युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने आपस में समझौता करके अपने देश के अश्वेत लोगों के जातीय दमन की प्रथा आरंभ की. जो ढांचा उन्होंने तैयार किया था वह उन सबसे अमानवीय सख्त था जिसमें कभी विश्व समाज अवगत था. अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ओके, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में यह ढांचा हमेशा के लिए खो चुका था. इसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा जो रंगभेद के बिना सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people. ओके, यह दिन मेरे लिए हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. और उन लोगों के कष्ट और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता. I felt that day. उस दिन मुझे अनुभव हुआ. I have on so many others day. जैसा कि पहले कई बार हुआ. That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कि मैं उन सभी देशभक्तों का जोड़ हूँ जो मुझसे पहले हुए. ओके, That long and noble line ended and now began again with me.
और ये वह लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त कर मुझे शुरू हुई। मुझे दुख था, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मुझे उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया और वे यह नहीं देख पाए कि उन्हें बलिदान से क्या प्राप्त हुआ। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, and the Chief Lithulis, and the Yusuf Dandos, the Bram Fishers, and Robert Sobuquist of our time, men of such extraordinary. पृथक्करण की नीति में मेरे देश और मेरे लोगों को कभी न खत्म होने वाला गहरा घाव दिया। हम सबको उनके गहरे घाव से उभरने के लिए यदि कई पीढ़ियां नहीं तो बहुत वर्ष बिताने होंगे, परंतु दशकों के उस उत्पीड़न और वास्तविकता के एक और अनिश्चित प्रभाव पैदा किया, और वह है इसके लिए ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ दुदुस, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट रेवुलेक्स जैसे हमारे समय के असाधारण साहसी ज्ञानी उदार व्यक्ति दिए कि उनके जैसा शायद ही कोई हो। ओके, there is wisdom, generosity, and they are like many never known and again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. शायद उन्हें ऐसे उच्च तरीके के निर्माण के लिए गहन उत्पीड़न की आवश्यकता है। मेरा देश खनिज और हीरो से संपन्न है जो कि भूमि में दबे हैं, परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो अच्छे सच्चे और हीरो से शुद्ध हैं। ओके, इट इज़ नॉट फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up the attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Okay, इन्हीं साथियों के संघर्ष ने मैंने साहस का सीखा। समय समय मैंने महिलाओं पुरुषों का एक विचार के लिए खतरा उठाते हुए जीवन देते देखा। मैंने देखा कि मनुष्यों के आक्रमण का सामना करते हैं और बिना झुके अत्याचारों का सामना करते हैं, सब प्रकार की मुसीबतों से जूझ कर उससे उबरने का साहस दिखाते हैं जो कल्पनीय है। मैंने सीखा कि साहस से डर को भगाना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना है। साहसी व्यक्ति वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वह धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकें तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय से में इसके विरोधी की अपेक्षा प्राकृतिक तरीके से आता है। Even in the grimmiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ठीक है, यहाँ तक कि जेल के कठिनतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा में पहुँचा दिया जाता, मुझे रक्षकों में से एक में मानवता की चमक दिखती। शायद वह एक क्षण है के लिए परंतु इतना ही मुझे आगे बढ़ने का विश्वास देने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता। अब ये क्वेश्चन आंसर आप लोग करिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ अब कल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर करके कंप्लीट रखिएगा। थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि कुछ अनपढ़ लोग जो हैं पूरी रोड खाली होने के बाद भी हॉर्न बजा रहे हैं,
तो थोड़ा सा इसको बियर करिए, क्या करेंगे। थैंक यू।